Students, in our previous lecture, we have discussed about some vectors such as equal vectors, negative of a vector, modulus of a vector, unit vector, fixed vector, free vector, and collinear vector. Now, in our today's lecture, we are going to discuss about some more vectors, and these are coplanar vectors. So, our today's heading is coplanar vectors. This is coplanar vectors, right? Coplanar vectors. Now, the definition of the coplanar vector, as its name suggests, coplanar means the vectors which act in the same plane, right? Here we can say the vectors which act which act in the same plane in the same plane are called coplanar vectors. Coplanar vectors, right? तो यहाँ पर जैसा इनका नाम है, coplanar vectors means vectors which lie in the same plane are called coplanar vectors. Now, next vector is co-initial vectors. Co-initial vectors. Co-initial vectors. Now, the definition of this co-initial vectors is the vectors which have the same initial point. The vectors which have the same initial point right, same initial point are called co-initial vectors. Co-initial vectors, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप इसको डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सपोज़ आपके पास में इस पॉइंट पर एक वेक्टर जो है वो ये है, दिस इज़ ए वेक्टर, और एक वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ वी वेक्टर, एंड this is another vector which is c vector. Now here you can see that the starting point, right, of all these vectors, vector a and vector b, vector c, is same. This is the starting point of all the vectors, so these vectors are called co-initial vectors. Now our next vector is coterminous vector. Terminus vector or vectors. Coterminus means the vectors terminating at the same point, they are called the coterminous vectors, which have the common terminal point. You can say the vectors which have the same right, same or common terminal point, same, or you can say common terminal point are called coterminous vectors. Coterminous vectors, राइट. तो इसको आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं. सपोज़ ये आपके पास में एक कॉमन पॉइंट है,
यहाँ पर एक वेक्टर ये इस तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज़ वेक्टर ए। एक और वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर बी टर्मिनेटिंग एट द सेम पॉइंट, एंड here is another vector which is terminating at the same point O. So these vectors, vector A, vector B and vector C, they are called the coterminous vectors. Right students? Now student, the next vector is zero vector. Zero vector. Zero vector, or you can say this is also known as null vector. Alright, so students, a zero or null vector, zero or null vector is a vector, right, that has zero magnitude, राइट, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है स्टूडेंट, जीरो है, एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, राइट, they are called zero vector. Zero or null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction, यानी इनकी डायरेक्शन जो है वो कुछ भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो ये वेक्टर जो हैं वो कहलाते हैं आपके ज़ीरो वेक्टर। एंड दिस ज़ीरो वेक्टर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ीरो के ऊपर हम एक एरो प्लेस कर देते हैं, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़ीरो वेक्टर। ये बहुत ही एक कहना चाहिए इम्पोर्टेंट वेक्टर है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है, राइट स्टूडेंट। नाउ हेयर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ज़ीरो वेक्टर, आई वुड लाइक टू डिस्कस द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो वेक्टर्स, राइट, some properties of zero vectors. So here the first point is, whenever a vector is added, एक वेक्टर है आपके पास में, इट इज़ एडेड विद जीरो वेक्टर, इसको अगर हम जीरो वेक्टर्स के साथ में हम ऐड करते हैं, वी गेट द सेम वेक्टर, हमें सेम वेक्टर ए वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, क्या, व्हेन ए रियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में लैम्डा है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए ज़ीरो वेक्टर, अगर हम इसको ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट अ ज़ीरो वेक्टर, हमें एक ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। और थर्ड पॉइंट आप यहाँ इसको कह सकते हैं, व्हेन ए वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड, सपोज़ ये आपके पास में एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए ज़ीरो, whenever a vector is multiplied by 0 we get zero vector, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ज़ीरो वेक्टर मिल रहा है, राइट। तो here are these are the some properties of the zero vectors, राइट। तो इसके एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जीरो वेक्टर के अगर मैं एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी करूँ, तो दी पोजीशन वेक्टर फर्स्ट है, दी पोजीशन vector, right, of a particle lying at the origin, right, or at the origin is a ज़ीरो वेक्टर मीन्स एक आपके पास में पार्टिकल है जो आपका ओरिजिन पर लाई करता है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी ज़ीरो वेक्टर, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
राइट, ऑब्जेक्ट इज ए ज़ीरो वेक्टर, इज ए ज़ीरो वेक्टर। ये आपके पास में क्या होता है, इसका एक जीरो वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, जीरो वेक्टर है। और ऐसे ही आप यहाँ पर कह सकते हैं दी एक्सेलरेशन वेक्टर, दी एक्सेलरेशन वेक्टर, वेक्टर of an object, right, moving with uniform velocity, object moving with uniform velocity, with uniform velocity, right, is a zero vector, is a zero vector। तो एक आपके पास में एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दैट विल बी अ ज़ीरो वेक्टर। राइट स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द another topic of this chapter. This is multiplication of a vector by a real number, right? So our next topic is multiplication of a vector, एक आपको वेक्टर दे रखा है, राइट, उसका हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, हम किस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो सपोज स्टूडेंट यहाँ पर व्हेन ए वेक्टर और यू कैन से दिस ए वेक्टर is multiplied right, multiplied by a real number, you can say lambda। हमने इसको अज्यूम कर लिया है, लैम्डा से हमने इसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर को मान लिया। we get right another vector and this vector is lambda a vector। हमें एक नया वेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, lambda a vector। now the magnitude of lambda a vector जो आपके पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में मिला है is lambda times the magnitude right, magnitude of a vector, यानी यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई किया है एक वेक्टर a को विद लैम्डा से, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो है लैम्डा ए वेक्टर, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है that will be lambda times the magnitude of a vector। now here if lambda is positive, lambda अगर आपके पास में पॉजिटिव है, right, then the direction of lambda a vector is same, ये सेम होगी, राइट, एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो लैम्डा ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। एंड इफ लैम्डा इज नेगेटिव, राइट स्टूडेंट, then the direction of lambda a vector
जो आपके पास में है लैम्डा ए वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास में एक वेक्टर है, दिस इज़ ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 यूनिट्स है, और इसको हम लैम्डा से हम एक मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा दैट इज़ बी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। ये आपके पास में इस तरीके से होगा। यहाँ लैम्डा पॉजिटिव है, सपोज़ आपके पास में यही वेक्टर है वेक्टर ए, और लैम्डा इज़ इक्वल टू यहाँ पर -2 है, तो अब हमें यहाँ पर जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंड दिस इज़ योर बी वेक्टर इज इक्वल टू, राइट, दिस इज़ -2a वेक्टर। So student, this is the multiplication of a vector by a real number। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखें कि जो रियल नंबर हैं आपके पास, जैसे स्टूडेंट अब आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपके पास में रियल नंबर है, अब जो रियल नंबर है आपके पास में, अगर ये प्योर नंबर है तो इसकी ना तो कोई यूनिट होगी और ना कोई डायमेंशन होगी। तो अब अगर हम उस प्योर नंबर से हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा लैम्डा ए वेक्टर, उसकी भी यूनिट वही होगी जो ए वेक्टर की होगी, राइट स्टूडेंट। तो इसको हमें ध्यान रखना है। Now students, our next topic is multiplication of a vector by scalar right students। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास में let us consider you have a vector A, when a vector A is multiplied by a scalar, let this be lambda, right, we get another vector lambda a vector। Now here the magnitude of lambda a vector will be lambda times the magnitude of a vector, ये इसके लैम्डा टाइम्स होगा, एंड द यूनिट ऑफ lambda a vector will be the product of units of lambda and a vector, इसकी यूनिट्स के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर is multiplied by mass, right, we get
मोमेंटम। मोमेंटम हमें क्या है, यहाँ मोमेंटम मिलता है द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज obtained by multiplying the units of velocity by the units of mass, right student? So here this is the multiplication of a vector by scalar, right? Now student, we are going to discuss our next topic is addition of vectors. This is addition of vectors को हम किस tariके से जोड़ते हैं उस चीज़ को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Now student, the process of adding two or more vectors, right, is called the addition of vectors, right? Or you can say, or the composition of vectors, इसको हम composition of vectors भी बोलते हैं। Now student, as the vectors have both magnitude and direction, so they cannot be added by using ordinary rules of algebra, ठीक है। Now here vectors can be added geometrically, इसको हम geometrically ऐड करते हैं। We use following laws of vector addition, हम जो है वेक्टर एडिशन के लिए जो हम नीचे यहाँ एक्सप्लेन करेंगे लॉज को, उनको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। and the third is polygon law of
law of vector addition. Now here student, this triangle law of vector addition, it is used for the addition of two vectors, or you can say for adding two vectors. Parallelogram law of vector addition, it is also used for adding two vectors. Whereas this polygon law of vector addition, it is used for adding more than two vectors. अगर हमें दो वेक्टर्स से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आज के अपने इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दीज laws of vector addition, means triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition and polygon law of vector addition. Thank you student, thank you very much.